Hey, hello everyone. This is Rajat, and in this video, I will gonna discuss the problem B sequence game of Code Forces round 894 for Div 3. So let's start with problem statement first. Okay. So according to this statement, Tema and Vika are playing the following game. First, Vika comes up with a sequence of positive integers a of length m and write it down on a piece of paper. Then she takes a new piece of paper and write down the sequence b according to the new following rule. Okay. So first she write down a1 and then she writes down only those ai such that ai minus 1 is less than equals to ai. Okay. So or and the range of I is from 2 to m, and let the length of the sequence be denoted as n. For example, from the sequence a 4 3 2 6 3 3, Vika will obtain the sequence b, because if we see according to this statement, then firstly Vika, yes, Vika is correct name. Okay, so yes, Vika has to write the first element. Okay, so first element, and then in full array from 1 to if we consider zero based indexing, then we will consider from 1 to n minus 1. Otherwise we will have to consider from 2 to less than equals to m. Okay, so basically we are considering zero based indexing. So from 1th index element to n minus 1th element, we have to check this condition. If a at I minus 1 is less than equals to a at I, then we will put a at I in our array b. Okay, so as you can see in this 2 and 6, the 6 is greater than 2, so we will put 6 here. Okay, and in this 3 is less as 3 is equals to 3. Okay, so basically array at n minus 1 is greater than or equals to array at n minus 2. Okay, so here the equals to condition is following up, so we put here 3. Okay, so I think this is clear to you. Okay, so then she then gives the piece of paper with the sequence b to Tima, and Tima, he in turn tries to guess the sequence a. Okay, so Tima consider winning in such a game highly unlikely, but still wants to find at least a sequence a that could have been originally chosen by Vika. Help him to and get output any such sequence. Okay, so we can print any such sequence. Okay, so yeah, we have also take care that the length of sequence you output should not exceed the input sequence length by more than 2 times. Okay, so basically it is saying that the length of sequence a, that the length of sequence a that we are making is not greater than 2 into length of b. Okay, so basically the length of a is not greater than 2 into b. Okay, so we have to always give a length such that it will lower down to dot b. Okay, so now अब एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. हाँ, देखो अब इसका सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं. देखो हमें ना बेसिकली मैं पहले 1 2 3 इसके टेस्ट केस उठा लेते हैं. ओके, पेस्ट कर देते हैं. ओके, सो अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस में देखें, हमारे पास बेसिकली 4 6 3 है. 4 6 एंड 3, 4 6 एंड 3, ये हमारे पास बी एरे गिवन है. तो अगर हमें एक ए एरे कंसिडर करना है या फिर ए एरे हमें बनाना है, हम बेसिकली कैसे बना सकते हैं. सबसे पहला एलिमेंट बिल्कुल सेम एज इट इज़ रखेंगे. ये 6 वाला एलिमेंट अगर हमारा ये वाला जो एलिमेंट है ith एलिमेंट, अगर ये हमारा i माइनस 1 से बड़ा है तो हम इसे एज इट इज़ रखेंगे. अदरवाइज हम इसके आगे कोई इससे छोटा नंबर ऐड कर देंगे. अब ये जो हमारा 3 है, क्योंकि ये 6 से छोटा है, तो हम इसके आगे कोई इस नंबर से छोटा एलिमेंट ऐड करेंगे एंड देन इसे पुश कर देंगे. 3 जस्ट लाइक 3 से छोटा एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं, 2 या 1. ओके, सो मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ.
तो अब ये जो मेरा ए एरे है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं इससे बी एरे बनाना चाहूँ तो उसने हमें ये बताया था कि सबसे पहला एलिमेंट एज इट इज़ रखो, 4 रखा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करो कि अगर ये वाला एलिमेंट इस इससे i-1 से बड़ा या इक्वल्स टू है तो हमें इस एरे में ये पुट कर देना है, 6 पुट कर देना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब ये वाला ऐसा इस पे कंडीशन फॉलो नहीं हो रही पर इस पे हो रही है, क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट है ये हमारे 1 से ज़्यादा है। ओके, सो हमें ये भी पुट कर देना है और हमें क्या कर देना है, ये हमारा फाइनली बैक वो ही बन गया। सो हमारा ये जो हमने ए बनाया ये हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब एक बार इस वाले टेस्ट केस को हटा के, ये तो एक नॉर्मल फर्स्ट टेस्ट केस हो गया। ओके, एक बार सेकंड टेस्ट केस के लिए देख लेते हैं। ओके, सो सेकंड टेस्ट केस में हमारे पास गिवन है 1 2 3। ओके, सो अगर मैं देखूँ इस वाले टेस्ट केस में 1 2 3 ये मेरे पास बी गिवन है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे पहले मैं चेक कर फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ यहाँ पे ए एरे में रखूँगा, सॉरी ए नहीं 1। एंड देन ये जो सेकेंड एलिमेंट है अब मैं चेक करूँगा क्या जो ये वाला एलिमेंट है ये i-1 से ज़्यादा है, अगर है या फिर ज़्यादा या फिर इक्वल के लिए चेक करूँगा। अगर हाँ तो मैं इसे एज इट इज़ रख दूंगा। अब इस पे आए क्या ये i-1 से बड़ा या इक्वल्स टू है, हाँ बिल्कुल है, तो मैं इसे एज इट इज़ रख दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए ये सिंपली हो गया। तो इस वाले टेस्ट केस में भी ऐसा कुछ खास था नहीं समझने के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। 17957 इसमें थोड़ा समझने के लिए है। 17957 अगर मैं अब मेरे पास ये बी एरे गिवन है, अगर मैं बात करूँ तो मैं ए एरे कैसे बना सकता हूँ। मैं बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट उठाऊंगा एज इट इज प्रिंट करूंगा एंड देन सेकंड एलिमेंट अगर ये i-1 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो बिल्कुल एज इट इज रखूंगा। अदरवाइज मैं इसके आगे कोई इससे इससे छोटा नंबर ऐड कर दूंगा। 9 इससे ग्रेटर देन है तो मैं एज इट इज रखूंगा। बट अगर मैं यहाँ पे 5 के लिए देखूँ, 5 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, इट इज लेस देन 9। ओके, सो वी हैव टू पुट 1 ऑल्सो। We have to put firstly 1 and then we have to put 5. Okay, so here is the catch. Okay, so अब हम इस वाले पे देखें इस 7 पे, तो 7 is greater than 5, so we simply will add 7 to the answer. Okay, so अब यहाँ पे एक डाउट और आता है कि मैं ये जो आंसर है ये मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है, या फिर मैं कैसे स्टोर करूंगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर। इसके लिए ना हम कोई सा भी स्टैक यूज़ कर सकते हैं, हम एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से यूज़ कर सकते हैं। बट एरे में क्या होता है, हमें एक साइज़ डिक्लेयर करना होता है, तो इसमें साइज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसमें एक एरे लिस्ट यूज़ की थी, एरे लिस्ट, क्योंकि एरे लिस्ट में कोई साइज़ डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। सो ये क्वेश्चन एरे लिस्ट से हो गया बिल्कुल इसी लॉजिक से। बस मैंने इस पर थोड़ी ग्रीडी, मतलब ग्रीडी नहीं बोलेंगे इसे, ये वाली थोड़ी अप्रोच रखी और ये क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने एक इंटीजर n लिया, एक एरे लिया एंड देन मैंने क्या करा, एक आंसर एरे लिस्ट बनाई। अब मैं इसमें सिंपली क्या करता रहा, अगर सबसे पहले मैंने फर्स्ट जो एलिमेंट है उसे मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐड करूँगा एरे लिस्ट में, मतलब आंसर में। एंड देन मैंने क्या करा कि अगर मेरा एरे एट अगर मेरा एरे एट आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मेरा एरे एट i-1 है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड में थोड़ा गड़बड़ी कर रखा है, तो मेरे को क्या करना था, सॉरी मैंने यहाँ पे कंडीशन ही दूसरी लगा रखी है। इफ एरे एट आई is greater than or equals to array at I, then I will simply put answer dot add array at I. Otherwise I will also put answer dot add 1 and then I will add array at I. Okay, so and फिर लास्ट में बस मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं पहले इस एरे का साइज प्रिंट करूँगा एंड देन मैं सारे के सारे वैल्यूज़ प्रिंट कर दूंगा। बस इस कोड में इतना ही था। आई होप आपको ये वाला कोड समझ में आया होगा। ये ज़्यादा बी में कुछ इतना खास था नहीं, क्वेश्चन में बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बी वाला, आई होप। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा लाइक कर देना। एंड आगे इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं सी डी वाले प्रॉब्लम्स, उनके भी मैं मोस्ट प्रोबेबली आज ही वीडियो सोल्यूशन डाल दूंगा। ओके, सो मीट यू सून। ओके, बाय बाय।